सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। A very good morning to all of you. Friends, let us start. Let us start with our session. We were at the end of the 5th chapter. If you see, we are coming across the Kevali now. So coming to the shlok number. Okay. Yeah. 82. Swabhave 83. 84 is what we are going to start from, because that will be like a revision for the previous one, and then we can go ahead. We were talking about the length of the breath with respect to various activities of our life. And if you see the 84th one, it says Tasmat prane sthite dehe maranam naiva jayate vayuna ghat sambandhe bhavet kevala kumbhaka. Therefore, if prana stays inside the body, death does not come when Vayu gets spontaneously confined to the body and then results the Kevala Kumbhaka. One thing I should tell you here, when the Vayu is confined to the body and we become steady, that means that kind of stillness and steadiness with the breath being held inside the body will always going to lead to a state where it is like as if you have become one with the external prana. Means the external prana and the internal prana, now they are one. The internal prana is not adapting itself for the external prana to come in the body and change accordingly to the nature of the body. Now they have become one. The moment the internal and the external become one, you will find that there is no breathing as such. There is no inhalation or there is no exhalation as such. In the first chapter, when we were studying the understanding of the Ghata, it was very clearly written down in that shloka. The water in the Ghata and the water outside the water or outside the Ghata, they become one when the Ghata is immersed in the water. So what has happened here? This Ghata as the body, the water inside is prana and the water outside is prana. When this body is immersed completely into that prana, the internal prana and the external prana, they will become one, and it will be like, the body has been immersed into it. In fact, वहां पर शरीर का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता. What remains is only the consciousness, which is all pervading. So this shloka is making us understand that after going through all kind of activities, खाते समय, पीते समय, सोते समय, भागते समय, जागते समय, हर समय जो हमारी सांसों
की पोजीशन होती है, किस प्रकार हमारी सांसें कितनी लंबी होती है, कौन से एक्टिविटी में, जब हमने ये देखा तो one thing becomes very clear, that the moment you are externally involved, the prana tries to adapt according to the aspirations of the body or the requirements of the body. But now all those activities have been stopped or have come to a state of standstill. When that thing takes place, then it is like the internal and the external thing becomes one, and there is no breathing at all. You are in the state of samadhi. So Kevala Kumbhaka is to be said as the experience of samadhi itself. Now, if you see the next one, he says, Sorry, right? Sorry. Ji, Can Ji. I just, so, so I think it's quite significant. Now, a couple of things. So one is that so when the external and the internal prana equalize or become one, so there is no necessity of breathing, right? It is Because not about breathing the is a link necessity. between the external and external prana. See, it is not about the need of the breaths. In fact, the breaths have been told as, if you are coming to birth, then you are breathing. If you are in that birth and death cycle, that means breathing goes on. If the breathing has stopped, that means what? Okay, you have gained mukti itself. So when the breath has come to that standstill state, where is the need to breathe again? Because now you have gained a state of chitta, which doesn't require this inhalation and exhalation to sustain the body. Correct. Aisa hai. Correct. Yeah. Correct. You know, I may share, you know, when Dr. Jaydev was kind of, we were not there, but we were told when he was passing away, you know, there came a time when everything stopped. You know, the nurse said that, look, the breathing has stopped, everything, all activity has stopped. And she went up informed that I think he is gone. So the family said, no, that's not possible. He cannot, you know, go away without, and they're waiting for some news. So I know he won't go away without that. And yes, they were, so they came down, they massaged his chest a little bit, whispered in his ear that, you know, so and so has happened. Breathing came back for a brief while, heard it, and then passed away. Right. So our thinking was that during that period, when the nurse felt that, look, from a medical standpoint, that's it. He must have been, you know, doing subtle breathing, which doesn't require the incoming and outgoing breath. I presume. I don't know. That's why I was asking whether, you know, does the subtle breathing really require that inhalation and exhalation? So we don't know. Even when we say that subtle breathing requires, there is no subtle breathing also. In fact, the breathing is required only for the body to sustain it in this kind of environment, because body is having a limited period. But when that source of prana which sustains the body, that itself has become one with that kind of understanding and connecting with the self, then to maintain the difference between the consciousness of the body within and the consciousness outside the body doesn't stand. They become one. The moment the consciousness becomes universal, then where is the point of taking the water and bringing it into it? Taking the prana, bringing into it. The example was going on in my mind about becoming the ocean itself.
See, it is given, this example is given in one of the texts. There are various rivers which flow towards the ocean, and the ocean is unaffected by their injection, and it remains calm. It is the breaths, it is the rivers which are flowing towards the ocean, and when they merge into it, they become one with it, and still the ocean remains with its calmness as usual. So when there are various rivers means various people who are breathing, and once their breath has become one with that ocean itself, then where is the question of breathing again? और यहां पर कैसा आया कि एक बार हमारे अंदर जो जाकर जो सांसें हमको सस्टेन करती हैं, अगर वो सांसें बाहर की हवा के साथ में एक रूप हो गई हो, तो फिर अंदर बाहर करने की जरूरत ही कहां रह जाती है? Correct. The dichotomy itself falls, right? Internal external, right? Dichotomy is no longer valid. No longer. And that itself, the person is in the state of samadhi, and he is going beyond, and he has already started into that process, and maybe he might have gone beyond the process. क्योंकि योग सूत्र के अनुसार देखा जाए तो समापत्तियों से होते हुए, संप्रज्ञात से होते हुए, तब कहीं जाके हम जो है निर्बीज समाधि की ओर आते हैं, और एक बार निर्बीज समाधि क्रॉस हो जाने के बाद फिर धर्म में एक समाधि से होते हुए हम कैवल्य को प्राप्त करते हैं. So said and done, all those stages have been given in different language, in different text, but the theory is same. So we have to understand that once this Kevala Kumbhak takes place, then we have to be very clear that now that state of samadhi has ensued, and having come in, we should just be stabilized over there. So also this other instance, I think, which we also mentioned before, like among many documented instances, there's a fakir in Egypt who stayed for 40 years in a bunker underground. Went down in 1880 and was discovered back in 1920. And he was still alive and stayed alive for 3 years. So for 40 years, he sustained on, So would he also have been in a state of Keval Kumbhak? Can we say that? Or is it likely? I will not be able to answer this. But let me tell you one thing. As per our Hatha Yogic text, if a person is going into the state of samadhi, and if he is only in the state of samprajñat samadhi, then there are always chances that that person will come out and even interact with the material world. But if a person has gone to that level where he has become nirbija, where the connection with the three gunas, sattva, raja and tama, have been completely annihilated, there is no point of returning back. Right. There is no chance at all. And if this person who was there in that bunker and left for those, lived there for 40 years, and then he came out, that means he may be existing only in samprajñat samadhi, not beyond that. That samprajñat samadhi might be continuing, and he was not given the chance to attain what you call as nirbija samadhi. So he had to come out of the bunker, experience the material world. Maybe some karmas were still left out, and he remained alive, as you said, for 3 years, and then he passed away. So when he passes away, he still is expecting one more janma, so that the journey from samprajñat samadhi to ansamprajñat samadhi will be completed in the next janma. So as he comes into the next janma, he will again be born as a medicant only. And as he is meditating, he will go into samadhi and he will achieve the state. तो हमें तो पता तो है नहीं, लेकिन जो किताबें कहती हैं वो मैंने आपको बताया.
A person who goes beyond Sampragnat Samadhi and enters into Nirbija, we have to understand that there is no returning back. निर्बीज का मतलब हो गया बीज आपका दग्ध हो गया, आपने बीज को जला दिया, और जहां बीज जल गया वहां फिर से आके सांसें लेना is not the possibility. That is how we have to understand. Okay. Thank you. Yeah. यावत् जीवम जपेन मंत्रम जप संख्य केवलम अद्यावधि धृतम संख्या विभ्रमम केवली कृते अतएव हि कर्तव्यः केवली कुंभको नरैः केवली च आजपा संख्या द्विगुणा च मनोन्मनि. Now see, he is talking about Hamsa or Soham. Throughout the life, this breathing goes on, inhalation and exhalation, which he calls as Hamsa. That means exhalation is done, so inhalation is also happening. Again, exhalation is done, inhalation is happening. So this goes ahead, and very clearly written here, it is happening at the rate of 15 per minute as average. On being blessed with Kevala Kumbhaka, if a person has attained Kevala Kumbhaka, there remains no question of any rate of respiration. जहां 15 सांसें हम 1 मिनट में ले रहे थे, केवल कुंभक में जब हम पहुंच जाते हैं तो 15 क्या, एक भी सांसें नहीं होती. So he says there remains no question of any rate of respiration. That means you have reached almost to the Manonmani Avastha, that is Samadhi. In Manonmani, reduction in the rate of respiration is double of that of state of Kevali Kumbhaka. अब ये गौर करने लायक है. एक तो वर्ड रिडक्शन को ध्यान में रखना है आपको, एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन को ध्यान में रखना है, एंड दैट ऑफ द केवली कुंभक. अगर केवली कुंभक आपको समझ लो आपको संप्रज्ञात समाधि में ले जाता है, जहां पर सांसें हमारी चल रही हैं, अभी तक वो पूरी तरह से शांत नहीं हुई है, लेकिन ये सांसों का जो रेट है, जब हम एक्चुअली समाधि में चले जाएंगे तो रिडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू इट विल बिकम डबल. इट विल बिकम डबल मीन्स व्हाट? इट विल बिकम हाफ, बिकॉज वी आर ऑन द नेगेटिव साइड ना, रिडक्शन साइड में हम देखो, 0 से प्लस साइड के अंदर इट इज 1 2 3 4 5, बट व्हेन वी गो टू द नेगेटिव साइड it is -1 -2 -3 -4 -5. So if it was earlier 15, that means it was on the positive side, and now in Sampragnat Samadhi, in Kevala Kumbhaka, right from 15 it has become 2 or 3 or 1, and now it is said, if you are going beyond into the state of Manonmani Avastha, that is Samadhi ki Avastha, then it will become double to that of at the reduction rate. तो हम नेगेटिव साइड में आ जाते हैं. You come to this side. So when you come to this side, it is very clear that the rate of the breath, no question at all, it has almost stopped, and it is held very peacefully without the requirement of sustaining the body to be alive with that oxygen, because now the oxygen in the air and the oxygen inside of the body, they have become one. So there is no need of taking the oxygen from outside and sustaining it. ये कैलकुलेशन को अगर कभी मैं और एक तरीके से समझाऊं कि अभी हमारा नॉर्मल ब्रीदिंग रेट जो है, मान लो 16 है, और हमने प्राणायाम का अभ्यास करना शुरू कर दिया. आसन का अभ्यास तो किया ही था, और प्राणायाम बंद मुद्रा के अभ्यास से there is a very good huge reduction in the rate of breath. From 16 it has become 8 now. From 8 it has become 4. From 4 it has become 2.
and from 2 it has become -2. तो जब -2 की बात आ रही है, तो the rate of the breath which was external, now it has stopped and become totally internal, and that internal understanding is like the prana inside the body and the prana outside the body, they have become one. This is how this shloka is trying to explain to us and understand the thing. So here he says, Ata eva hi kartavyah kevali kumbhako naraihi kevali cha ajapa sankhya dviguna cha manonmani. In manonmani, the kevali kumbhaka is going to lead to a state where your breath has become half of what it was happening in the in the kevali kumbhaka. So in the kevali kumbhaka itself, it was going on reducing. So kevali kumbhaka practice karte rehne se jo hai, it will go on reducing, it will go on becoming minimized, and eventually it will become settled, it will become relaxed, or I should say it will become poised into that silence, it will become poised into that mauna, where there is no breath also taking place. And you have gone so down within that you have become united with the self. So this is how it is to be understood here. Okay. Now, how to go ahead with this technique of reducing the breath and coming to the half and more half and more half. See the shlok number 87. He says, Nasabhyam vayum akrushya kevalam kumbhakam charet ekadi chatuhu shashtim dharayet prathame dine. And if you see the next, kevalim ashtadha kuryad yame yame dine dine atha va panchadha kuryad yatha tat kathayami te. अब ये दोनों श्लोक को हमको ऐसे समझना है कि when you are trying to practice kevali kumbhaka, you are drawing the breath in, you are inhaling through both the nostril, just stopping the breath in. On the first day, retain the breath from 1 to 64 times. 1 to 64 times के दो अर्थ निकलते हैं. एक तो ये होता है कि as much possible you try to reduce the rate of breathing and increase the state of kumbhaka. और दूसरा ये हुआ कि if you are inhaling 16, the retention of the breath should be 64, whereas exhalation will be 32. और आगे के श्लोक में देखो ये क्लियर होता है. One would perform kevali 8 times a day, once every 3 hours. One may do it 5 times a day, as I am telling you, first in the early morning, then at noon, then in the evening, then at midnight, then in the 4th quarter of the night. One may do it thrice a day, dividing the day in 3 equal parts every 8 hours. तो अब हमसे क्या कहा गया है कि हर 3 घंटे में आपको ये प्राणायाम का अभ्यास करना. Inhalation, retention and exhalation also. Again inhalation, retention and exhalation. और ऐसा आपको कितनी बार करना है? हर 3 घंटे में करेंगे तो 8 बार हो गया. तो आप बोलेंगे 8 बार तो मेरे से नहीं हो रहा है. ठीक है, आप 5 बार करो. तो अगर आप 5 बार कर रहे हैं तो उस हिसाब से अपना जो है ड्यूरेशन को डिवाइड करो. और फिर वो आगे बोलते हैं कि अगर 5 बार भी नहीं कर पाते हैं तो 3 बार करो. तो 3 बार करके अपने आप को ट्रेन करो. ये एक हो गया. इसका एक अर्थ और भी निकलता है कि शुरुआत में आपको ये 8 बार करने की जरूरत पड़ेगी. धीरे धीरे ब्रेथ का प्रोलॉन्गिंग इतना हो जाएगा कि वो अपने आप 5 बार हो जाएगा. और वो 5 का 3 भी हो सकता है. यानी आप ऐसे समझ लो कि हर 8 घंटे में एक बार वो प्राणायाम हो रहा है and you are almost getting into that state of ecstasy, or you can say in the state of complete peace and settling. तो ये दो तरीके से इसके मीनिंग निकाले जा सकते हैं, क्योंकि इसके पहले वाला जो श्लोक है
वो हमको reducing and making it half कहा, तो 8 का 5, 5 से 3 की तरफ, almost making it half of each, तो 8 का 4 हाफ होना चाहिए और 4 का हाफ 2 होना चाहिए। तो इसके आगे तो हमको यही समझना है कि जो 3 बार कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट 2 हो जाएगा और जो 2 बार कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट 1 बार हो जाएगा। तो एक बार करने के बाद में जब दूसरी बार शुरुआत करते हैं तो इट इज लाइक हाफ ऑफ द डे हैज गॉन इन दैट प्रैक्टिस। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप पूछेंगे, इसका मतलब क्या वो इंसान बाहर नहीं आ रहा है? यस, एक बार केवली कुंभक का प्रोलॉन्गिंग हो जाएगा और उतने साइकिल उस तरह से होने लगेंगे तो naturally a time will come where you are completely settled, surrendered and completely at rest, no breathing taking place, and you are sustained or suspended, I should say. So this is how people have interpreted. अब ये जो है कैवल्यधाम की पब्लिकेशन को हम पढ़ के समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ जो दूसरे ऑथर्स हैं, जैसे कि एक कमेंटेटर हैं जो चौखंबा पब्लिकेशन को उन्होंने अपना जो है वर्क डोनेट किया है और उसमें उन्होंने ये बातें लिखी हैं कि इसको 2 तरीके से समझा जा सकता है। एक तो इसको फिजिकली नंबरिंग करके आप इसको समझ सकते हैं कि हाउ यू आर reducing from 8 to 5 and to 3 and prolonging the duration more and more. और दूसरा उन्होंने ये कहा कि you just imagine you are not able to do now 8 times, but that 8 has come to making it 5 and that 5 has become 3 now. So it is really a big question mark because we people who are not practicing it and not have experienced it, how we can say that this is going to happen? हाँ, जिसने अभ्यास किया हो वो आकर हमको बता सकता है और शायद हो सकता है घेरंड मुनि ने अभ्यास के एक्सपीरियंस के ऊपर ये लिखा है, लेकिन वो एक्चुअली कहना क्या चाह रहे हैं वो थोड़ा सा हमको समझने की जरूरत है हर तरीके से। तो both the authors are correct in their own place, but at the same time only your practice will lead you to this state where you will be getting the right understanding of these shlokas, and that is how the Kevali Kumbhaka has to be understood. Okay, आगे देखो वो कैसे कहते हैं, प्रातम अध्या यह साहये मध्यरात्रि चतुर्थके त्रिसंध्याम अथवा कुर्यात् सममाने दिने दिने पंचवारम दिने वृद्धि वारैकम च दिने यतथा अजपा परिमाणम च यावत् सिद्धि प्रजायते। One should increase the rate of ajapa japa from 1 to 5 times a day till the success is achieved. तो पहले सक्सेस क्या है वो उन्होंने बता दिया कि किस तरह से आपको स्टेबल होकर एकदम से शांत और रिलैक्स हो जाना चाहिए, और अब उसकी तैयारी के बारे में बोल रहे हैं। बोलते वन शुड इंक्रीज द रेट ऑफ अजपा जप फ्रॉम 1 टाइम अ डे टू 5 टाइम्स अ डे टिल सक्सेस इज अचीव्ड। यानी जो प्रैक्टिस मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि भाई आपका जो नॉर्मल जो सांसें हैं वो 15 चलती हैं 1 मिनट में, तो अगर आप उसको रिड्यूस करने जाएंगे तो ऑटोमेटिकली this rate of breathing is going to get reduced, and as that is happening with your awareness, if earlier it was happening once in a day, now you can practice it 5 times in a day so that you are encouraging yourself to go to that state earlier. इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि हमने हठ प्रतिपिका में पढ़ा है कि you are supposed to practice प्राणायाम 4 times, और यहां पर क्या लिखा हुआ है कि you are supposed to practice the practice of pranayam. If you see the 89th one, it is clearly written pratamah in the morning, madhyahne in the noon, sayanhe
साह्यन्ने in the evening, madhyaratre at midnight, chaturthake means in the fourth quarter of the night, trisandhya matha, that means thrice a day, kuryat samamane dine dine, panchvaram dine vruddhi varaikam च दिने तथा अजपा परिमाणम च वात सिद्धि प्रजायते। अब हमने ये पहले तो समझ लिया कि किस तरह से हमको इसको रिड्यूस करते हुए जाना है। यहां आगे हम क्या समझ रहे हैं कि ये जो रिड्यूस करने की जो टेक्निक है उसको कम से कम कहीं ना कहीं आपको एफर्ट तो डालना पड़ेगा। तो वो एक टाइम जो अभी आप करते हो मे बी दैट इज नॉट इनफ, तो यू शुड बी डूइंग द प्रैक्टिस फ्रॉम 1 to 5 times so that the success is achieved. You are coming to that level of success. Very deep understanding of practicing pranayam. अगर कभी हम हठ प्रदीपिका का ही अगर कभी दिन में 4 बार की बात ले लें, सुनील भाई, can you mute yourself? Yeah. Yeah, thank you. Now, see here. In that Nadi Shuddhi of Hatha Pradipika, we were told to practice 4 times a day. Maybe here it is said 5 times a day. तो ये 4 और 5 का डिफरेंस तो है। अब वहां पर जितनी साइकिल की जा रही थी हमने कैलकुलेशन किया कि भाई एक वक्त की प्रैक्टिस करने के लिए कम से कम 3.5 से 4 घंटे लग जाते हैं। एज पर द बेस्ट वे ऑफ द प्रैक्टिस दैट इज 20, 80 एंड 40। तो 20, 80 एंड 40 मीन्स 140 सेकेंड्स। अब वो 140 सेकेंड्स को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो इट इज लाइक almost more than 2 minutes taken for one cycle. If one cycle is taken 2 minutes and more than that, मतलब और भी 20 seconds ऊपर रह जाता है, मतलब 2 1/3। अब अगर कभी आप इसको मिनट में कन्वर्ट करके 80 साइकिल आपने कर लिए तो it is almost like 160 minutes plus that 80 into that 1/3। तो 80 का 1/3 कितना हो गया? It is almost like 27, 28, 27 पकड़ते हैं। तो 160 plus 27 is 187, और 187 को अगर कभी हम 60 से डिवाइड करते हैं तो इट इज ऑलमोस्ट 3 hours प्लस। तो इफ यू डू 5 times और 4 times, इट इज ऑलमोस्ट 13 hours to 16 hours। और ये 16 hours की साधना जो है इट टेक्स यू इन अ स्टेट वेयर यू बिकम कंप्लीटली सेटल्ड। अब ये 16 hours को आपको गैप देना है ना, भले 3 घंटे का गैप देना है या फिर 4 घंटे का गैप देना है, और गैप देते हुए इतनी प्रैक्टिस करनी है आपको। तो जब आप 3 घंटे का गैप देंगे, 3 घंटे का गैप दे भी नहीं सकते, अगर कभी हम 16 hours समझो अगर कभी ये कर रहे हैं तो बचे कितने? 8 घंटे। तो ये 5 में अगर कभी 8 घंटों को अगर हम डिवाइड करते हैं तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक 1.5 hour या फिर ऑलमोस्ट 2 hours बीच में। तो 2 घंटे का लैग गैप या फिर 1.25 घंटे का गैप बिटवीन द 2 सिटिंग। नाउ जस्ट इमेजिन दिस गैप इज गोइंग ऑन reducing. When this gap is going on reducing, the practice becomes more with the rounds, यानी में वो 80 राग के लिए जो है ना ड्यूरेशन जो है हमारा बढ़ जाता है। यानी जो पहले 3 घंटे लग रहे थे अब वो शायद हो सकता है 5 घंटे लग रहे हो। तो वो जो 5 टाइम हम जो कर रहे थे अब वो 3 टाइम हो गया।
अब अगर कभी वही चीज को हम 80 साइकिल को 5 घंटे लगाने के बजाय, क्योंकि कुंभक बढ़ता जा रहा है ना, 5 घंटे के बजाय समझो अगर कभी वो 8 घंटे हो गया, तो ऑब्वियसली you are reducing it almost to 2 to 3 times, because you have to have a gap between, and then it will eventually become only once. And maybe that state of Kevali Kumbhaka practice maybe for 20 hours to 22 hours. 1 घंटा 2 घंटे का गैप दे दिया बीच में between the other day, और ऐसा करते करते कहीं वो प्रॉपरली केवल कुंभक में आके पूरी तरह से अपनी सांसों के साथ उसमें समा जाता है, तो फिर ये दिन में 2 टाइम करना, 3 संध्या या 4 संध्या करना, या फिर 8 बार करना, या फिर 1 बार करना, ये रहता ही कहाँ है? That is where you get dropped and you become one with the self. So there is a possibility that even the practice of pranayam can lead you, means Sahita can lead you to Kevali, and in Kevali you become completely stopped with your breaths. And maybe that Kevali will lead you into the state of Samadhi, and you are becoming one with the self. So this is how we are gauging it. As we are gauging or trying to understand the practice, our intention should be always making the breaths prolonged as much as possible. The more prolonged we make our breaths, the better is the understanding of going deeper within and becoming one with the self. तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो कभी कभी लोगों का ये कहना है कि मुझे मेरे 20 साइकिल्स करने के लिए 10 मिनट लगते हैं, 10 मिनट में मेरा 20 साइकिल हो जाता है. तो यू आर डिफाइनिंग द टाइम and the number of cycles with that period, and you are doing the practice. That is only going to help you to attain physical benefits or maybe mental benefits. But what about the spiritual attainment? उसके लिए तो ये फिजिकल बेनिफिट से पहले बाहर निकलना पड़ेगा. तो हमारी प्रैक्टिस जब प्रैक्टिस से साधना बन जाती है, then it is completely a different factor altogether. Then a person doesn't know or doesn't realize कि when he came into the practice and what is the time now that he is ending the practice, he might have crossed the whole day for the same. I hope you are getting clear idea of the same, or you are understanding it. तो केवल कुंभक को हमने देखो हठ प्रतिपिका में भी पढ़ा और घिरण संहिता में भी पढ़ा कि आसनों में सबसे अच्छा आसन सिद्धासन. प्राणायाम के अंदर केवल कुंभक, मुद्राओं में खेचरी, और समाधि में सबसे जो अल्टीमेट प्रैक्टिस है वो नादानुसंधान, विच लीड्स यू इनटू समाधि. तो ये केवल कुंभक भी जो है ऐसा कुंभक है कि जिसके प्रैक्टिस करते करते आप ऐसे स्टेट में चले जाते हैं कि आप समाधि को ही प्राप्त हो जाते हैं. तो ऑब्वियसली इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्राणायाम. दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड इट एंड कनेक्ट. ओके, नाउ शुड वी गो अहेड? If you see the 91st one. Yes. Sorry. Sorry, just one little thing. प्राणायाम से बात कर रहे हैं, गिरण मुनि भी कर रहे हैं और पीछे आई थिंक पद्मनाभ जी ने भी की. तो योग सूत्र के अंदर जो है वो संयम का जो प्रोसेस बताया हुआ है, तो वो क्या सहज रूप से हो जाता है? प्राणायाम में एक अटेनमेंट होने के बाद क्या सहज रूप से वो हो जाता है, या मतलब हाउ डज इट वर्क? अब एक बात बोलता हूं. पहली बात तो अगर आप केवल कुंभक को कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो प्राणायाम के अंदर ही दिया हुआ है, प्राणायाम के चैप्टर में, मतलब प्राणायाम के श्लोकों में ही दिया हुआ है. जब हम अभ्यंतर कुंभक, बाह्य कुंभक, अपना अभ्यंतर वृत्ति, बाह्य वृत्ति और स्तंभ वृत्ति, ये 3 प्रकार के ब्रेथ के मैनिपुलेशन को, आई थिंक श्लोक नंबर 50, yes 5050, and after that
वी आर कमिंग टू बाह्य अभ्यंतर विषयाकशेपी चतुर्थ, यानी चौथा प्राणायाम कौन सा है? चतुर्थ, दैट इज नथिंग बट केवल कुंभक। पहले तो हम केवल कुंभक को क्लियर कर लेते हैं। अब एक इंसान जो चौथा कुंभक यानी केवली कुंभक को ही एक्सपीरियंस कर रहा है अकॉर्डिंग टू योग सूत्र, इज देयर अ नीड टू डू संयम? द क्वेश्चन अराइजेस बिकॉज दैट इटसेल्फ हैज लेड यू इनटू द स्टेट ऑफ समाधि। ठीक है, अब संयम पे आते हैं। संयम के बारे में हमने क्या पढ़ा हुआ है कि धारणा, ध्यान और समाधि, ये तीनों साइमल्टेनियसली हमको ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाना है। तो धारणा करते 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 ध्यान होने लगता है, ध्यान करते 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 जो है समाधि में हम चले जाते हैं। इट इज अ प्रोसेस विच टेक्स प्लेस टुगेदर, बट देयर इज अ वे ऑफ ट्रांसेंडिंग फ्रॉम वन स्टेट टू द अनदर। लेकिन जब ये ट्रांसिशन होता है तो आपको याद होगा कि हमने वहां पर पढ़ा चित्त परिणाम, और वो चित्त परिणाम को हमने ऐसे पढ़ा कि एकाग्रता से समाधि और समाधि से निरोध परिणाम। देखो, आपको तीसरा चैप्टर उठा के ये देखना होगा वो संयम को समझने के, क्योंकि संयम की बात जब आ गई तो संयम के अंदर होता क्या है पतंजलि मुनि ने खुद बोला है, और उन्होंने क्लियरली कहा कि ये चित्त गोस थ्रू अ स्टेट फ्रॉम एकाग्र टू समाधि एंड फ्रॉम समाधि टू निरुद्ध। निरुद्ध मतलब नाउ देयर इज नो fluctuations taking place at all. Niruddha itself is a स्थिति of चित्तवृत्ति निरोधा। और उन्होंने एक बात बताई कि जब ये तीन परिणाम होते हैं तो ये तीन परिणाम के अंदर देयर इज द चेंज टेकिंग प्लेस विच इज टू बी अंडरस्टूड विथ धर्म, लक्षण एंड अवस्था। अब धर्म क्या है? विच एट्रीब्यूट, लक्षण व्हाट आर द सिम्टम्स, एंड अवस्था व्हाट यू हैव अटेन्ड। That is also a kind of parinama which one person experiences in all the three parinamas. One is ekagrata parinama, samadhi parinama, leading you into niruddha parinama या निरोध परिणाम। अब जब आप कहते हैं कि मैं संयम कर रहा हूं, तो एक जगह पर आप सही उतर सकते हैं, आपने संयम अपने सांसों पर किया हो, आपकी सांसें ही आपकी ऑब्जेक्ट बन गई हो, और शुरुआत में जब एकाग्रता आ गई तो एकाग्रता में आपका इनहेलेशन, रिटेंशन और एक्सहेलेशन सब आपके सामने पिक्चर बन के उतर रहा है। जब समाधि वाली बात आ गई तो सांसें हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इस बात को पूरी तरह से ड्रॉप कर देते हैं। ओनली द नॉलेज एंड द ऑब्जेक्ट इज एग्जिस्टिंग। और जब निरुद्ध परिणाम आता है तो वो नॉलेज एग्जिस्टिंग इन समाधि एंड द ऑब्जेक्ट एग्जिस्टिंग इन समाधि इज टू बी कनेक्टेड विद देयर धर्म, लक्षण एंड अवस्था, कि उसकी स्थिति कैसी है। अब उसके बाद में जब निरुद्ध अवस्था में आ जाते हैं तो ऑब्वियसली वो समाधि परिणाम से तो अलग ही होगी। तो ऑब्जेक्ट अगर ब्रेथ है तो आपने जो सवाल पूछा उसके हिसाब से संयम डन ऑन द ब्रेथ दैट विल टेक यू टू द स्टेट ऑफ निरुद्ध, फाइन, अंडरस्टूड, बट दैट ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन कैन ऑलवेज बी डिफरेंट। और हमको करना क्या है, जो भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ही हम वो ऑब्जेक्ट के वो स्वरूप में चले जाते हैं जो उसका मूल तत्व है, और वो मूल तत्व जो है कभी भी प्रधान प्रकृति होती है। जब प्रधान प्रकृति की अवस्था में आ जाते हैं तो हमको ये पता चलता है कि अब तो खाली सत्व ही बहाल हो गया है, और ये रजस और तम जो है शायद है ही नहीं, है भी तो नेग्लिजिबल है, नहीं है ऐसा बोल ही नहीं सकते, क्योंकि ऑलवेज द थ्री गुणास एग्जिस्ट टुगेदर।
और वहां पर हम क्या करते हैं, ये सत्व के बल बूते पर, ये सत्व के ज्ञान पर हम सत्व को ड्रॉप कर देते हैं। तो संयम का पार्ट क्या है, गेटिंग कनेक्टेड विद द सेल्फ। लेकिन संयम के बारे में ऐसे कहा गया है कि तुम्हारे अंदर जो चेंजेस आते हैं वो बात की बात है, कि धर्म लक्षण अवस्था को प्राप्त करते हुए तुम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हो, सक्सेसफुल हो जाते हो, दैट इज डिफरेंट। बट यू कैन नो every other object existing on this earth, every other functioning taking place in this universe by understanding, doing sanyama on that particular state of objectivity. हमने ये भी देखा कि ये काया और इंद्रिय और इनके एट्रीब्यूट्स यानी इनके फंक्शन, इसके बीच पे भी अगर कभी संयम करते हैं, दिस मे बी अराउंड सूत्र नंबर 40-42, जिसमें काया के ऊपर एक सूत्र लिखा हुआ है और इंद्रिय के ऊपर एक सूत्र लिखा हुआ। तो हाउ द भूत जय और द इंद्रिय जय कैन बी एक्वायर्ड बाय गोइंग बिटवीन द डिफरेंस, द डिस्टिंक्शन बिटवीन दिस एंड दैट। जैसे ये क्लैरिटी आ जाती है ना, you will feel that I am not the prakriti itself, I am not the body. The moment that I am not the body comes in, then sattva gives you introduction who you are actually. Once you gain that knowledge that I am this, still sattva is there. You have to drop that also, because unless you know that I am this, still that ego is there na, which is telling you that I am this. You have not yet become that. So if you want to become that, then you have to drop this knowledge that I am this. The moment you drop it, you become that. तो संयम के चैप्टर में हमने ये सीखा। तो वहां पर वो एक श्लोक आता है, आई थिंक द श्लोक नहीं, सूत्र आता है, मे बी सूत्र नंबर 50 या 51 होगा। तद वैराग्याद अपि बीज शये, और आगे लिखा है कैवल्यम। तद वैराग्य अपि मतलब क्या? इफ यू आर हैविंग बुक इन फ्रंट ऑफ यू, जस्ट ओपन इट अप एंड सी दैट सूत्र। तद वैराग्यादपि मीन्स ये सत्व को भी अभी तुम ड्रॉप कर दो, उसके तरफ भी वैराग्य ले आओ, एंड दैट लीड्स यू इनटू कैवल्य। तो जब हम समाधि की अवस्था में रहते हैं ना, तब कहीं ना कहीं सत्व एकदम संप्रज्ञात में बना रहता है। सत्व तभी ड्रॉप होता है जब निर्बीज समाधि में हम आ जाते हैं, और वो निर्बीज समाधि का भी कुछ ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर सत्व आपको यह एहसास कराता रहता है कि नाउ दिस इज द नॉलेज विच इज कीपिंग यू कनेक्टेड विद दिस नॉलेज। If you drop this, then you will enter into kaivalya, and that becomes essential. See how beautiful is the science of yoga. तो मैंने पूरी तरह से आपको संयम के अंदर जो हमने पढ़ा, 3rd चैप्टर विभूति, वो थोड़े में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि what takes place there, how the changes are taking place. So you cannot say that this practice of kaivalya is sanyama, but yes, it is sanyama when your object becomes your breath only. Is that clear now? Yes, that is right. So what this also seems to indicate is that probably breath is one of the best objects upon which to, upon which to kind of base your yoga practice, because then there is वो सबसे ज्यादा सहज हो जाती है। पर एक तो अपनी ही है, इसमें कोई externality है ही नहीं। It's not something that you can kind of मतलब कोई फॉरेन एलिमेंट वाली बात तो रहती ही नहीं है ना। और दूसरा, क्योंकि ब्रेथ पे राइड करते करते आप मतलब व्हेन देयर इज अ कैपेसिटी टू रीच द हाईएस्ट, तो उसमें फिर सिंपलिसिटी हो जाती है।
एग्जैक्टली, तो यू आर राइट। इन दैट वे जो अगेन कमिंग बैक टू विपश्यना, हाँ, विपश्यना, यस। तो उस तरह से हाँ वो फिर वंस अगेन आई फील कि भाई वो बड़ा लॉजिकल का एक पद्धति है, बहुत सहज पद्धति है, बिल्कुल है, आई थिंक दैट्स व्हाट इट अटेम्प्ट्स टू डू। बिल्कुल है। अभी मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। आप हाथ में नीडल ले लीजिए और हाथ में धागा ले लीजिए, द नीडल एंड द थ्रेड। नाउ व्हाट इज योर ऑब्जेक्ट? द थ्रेड टू पास थ्रू द होल ऑफ द नीडल, है ना? तुम्हारा ऑब्जेक्टिविटी क्या है कि मुझे ये धागा ये पिरोना है सुई के अंदर। और आप क्या करिए, वो मैकेनिज्म को स्टडी कीजिए। moment you are bringing the thread near to the hole of the needle, your breath has stopped. That makes the thread through go through the needle. अब यहां पर आपने ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान नहीं दिया, आपकी ऑब्जेक्टिविटी कुछ और ही थी, आपका ऑब्जेक्ट कुछ और ही था, लेकिन हुआ क्या? ब्रेथ स्टॉप हो गया। ऑफ कोर्स, taking breath as an object and excelling is always going to be brilliant, but focusing on any object and getting that brilliance is also possible. See, this is how yoga gives you lot of opportunity or lot of scope to connect with the choice of your own liking. आप क्या करना चाहते हैं? इनफैक्ट गुरु जी का ये कहना था कि अगर आसन का अभ्यास अगर सही प्रिंसिपल्स के साथ में किया जाए तो इवन प्राणायाम करने की जरूरत नहीं है, इवन धारणा ध्यान करने की जरूरत नहीं है, आसन के अंदर ही आपको समाधि प्राप्त हो जाएगी। और ये बात तो हमने सिद्धासन में पढ़ा है कि सिद्धासन एक ऐसा आसन है जिसमें अपने आप त्रिबंध लग जाते हैं, अपने आप कुंभक लग जाता है, अपने आप केवल का एक्सपीरियंस होने लगता है। तो अगर ऐसे होता है तो वो आसन में ऐसी क्या बात होगी? सी द ब्यूटी, मतलब हर एक पार्ट जो है योग का वो आपको सिद्धि की ओर लेके जाने की क्षमता रखता है। जरूरी नहीं है कि तुमको धारणा ध्यान तक जाना ही जाना है, क्योंकि क्या होता है मालूम है, जब आप आसन में ही हैं और वो लेवल पे पहुंच गए तो धारणा ध्यान समाधि आपके पास आते हैं। आप आसन में ही हैं, लेकिन वो आसन के अंदर वही धारणा ध्यान समाधि कैसे होने लगता है पता नहीं। इट इज अ सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस। अच्छा, साबिर भाई तो आपको बोल के बता रहे हैं, क्या साबिर भाई ने समाधि को एक्सपीरियंस किया है जो इतना अच्छे से बोल रहे हैं? नहीं ना। हम तो अपनी औकात को ही ढूंढ रहे हैं कि हम कब वैसे बनेंगे। ये तो किताबी बातें हैं जो आपके साथ में शेयर की जा रही, लेकिन ये किताबी बातों को अगर कभी हमको सच्चाई में कन्वर्ट करना है तो वो एक ही पॉसिबिलिटी है, प्रैक्टिस। हम अंदाजा लगा सकते हैं, बहुत सारे थियरीज क्रिएट कर सकते हैं, बट द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज द अल्टीमेट। और ये जैसे विपश्यना सामने आया ना, इट इज द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ द बुद्धा दैट मेक्स अस टू गो थ्रू विपश्यना। And there are other rishis and munis who have come across their own experiences and they have shared. योग निद्रा आप देख लीजिए, योग निद्रा is also a process which will lead you into samadhi. In fact, हठ प्रतिपिका में हमने पढ़ा भी है 4थे अध्याय में कि this is something like you have gone into yoga nidra, that means sleep with awareness. The moment you come to that state of sleep with awareness, अब आप सोचिए कि वेयर यू हैव रीच्ड टू समाधि। तो अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग टेक्निक्स हैं, अलग अलग समझाने का तरीका है, बताने का तरीका है। तो अलग अलग गुरुजन ने अपने अपने तरीके से उस चीज को पाया और वो हमने सामने रख दिया कि भैया ये चीज के साथ में यहां तक तुम जा सकते हो, बाकी आगे की जर्नी तो वो की नहीं जाती, वो हो जाती है। तो पॉसिबिलिटी इज बाय ऑल मीन्स। और इसीलिए तो आज के डेट में जो हमारे योग में आ गया ना, इतनी सारी चीजें आ गई,
लेकिन हमको ये समझना है कि इसमें से कोई भी एक पकड़कर हम आगे जाके उसके आगे बढ़ जाए। इज दैट क्लियर टू यू नाउ? समझ में आ गई आपकी बात? तो वो जो संयम और जो ये था, वो आप हैं अपनी जगह पर एकदम बिल्कुल सही, उसको आप बराबर से आप उसको करेक्ट कर रहे हैं। लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि केवल कुंभक ही संयम है, ये बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर एक प्रैक्टिस का अपनी जगह पर एक अपना स्थान है और उसके हिसाब से हम अपग्रेड करते हुए आगे की तरफ जाते हैं। ठीक? चलो, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। प्राणायामम केवली च तदा वदति योगविद केवली कुंभके सिद्धे किम न सिद्ध्यति भूतले। ऐसा क्या है इस दुनिया में, इस जग में, जो अगर हमने केवल कुंभक को प्रैक्टिस करना समझ लिया, हम पा नहीं सकते। यानी अगर आपको केवल कुंभक का अभ्यास अच्छी तरह से अगर आ गया, तो देन द रिजल्ट इज दैट यू कैन attain anything and everything in this world. But at the same time, attaining anything and everything is just to make you realize that you have become omnipotent and omniscient. वही विभूति पाद के अंदर मेरे ख्याल से 47वां या 48वां सूत्र है, which tells you that you have become omnipotent and omniscient. सब चीजों का ज्ञान आपको प्राप्त हो गया है और आप उस तरह के पावरफुल बन गए हैं। बट दैट powerful state is not for people, for us to show it to the people. It is for us to attain ultimate kaivalya. It is to go towards kaivalya, not to get stuck here. So this is how here it says कि what is there in this world that you cannot achieve. मतलब सब कुछ तुम्हारा ही हो गया ना, आप तुम उससे अलग नहीं हो। If everything is belonging to you, then what are you trying to achieve? You have already attained samadhi, means you have attained everything. फिर मुझे ये पाना है, मुझे वो पाना है, मुझे वहां पहुंचना है, मुझे ये करना है, ऐसा तो कुछ रह नहीं गया। So this is where we have come to the end of this 5th beautiful chapter. इति श्री घेरंड संहितायाम घेरंड चंड संवादे घटस्थ योग प्रकरणे प्राणायाम प्रयोगो नाम पंचम उपदेशः। प्राणायाम प्रयोगो, this is the name of this panchama upadesha, 5th chapter. So this is where we are coming to the end. एक थोड़ा सा इसका समरी कर लेते हैं, बहुत जरूरी है। हमने शुरुआत कैसे की ये 5th चैप्टर की? जस्ट अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ अबाउट इट, that after practicing pratyahar, after learning what is pratyahar, now we are going ahead and studying about the प्राणायाम। क्योंकि शुरुआती ऐसे श्लोक से होती है अथातः। अथातः का मतलब ये होता है कि आफ्टर डूइंग ऑल दिस प्रिपरेशन, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस थिंग, संप्रवक्ष्यामि प्राणायामस्य सिद्धिदम। नाउ, लेकिन वो नाव के पहले 4 चैप्टर हो चुके हैं, जिसमें एक चैप्टर प्रत्याहार का है, एक चैप्टर मुद्रा का है, एक चैप्टर आसन का है और सबसे पहला चैप्टर षटकर्म का है। वो सबको हमने प्रैक्टिस करके दृढ़ता हासिल कर ली। अगर हासिल कर लियो तो फिर अब घेरंड मुनि कहते हैं कि सुनो मैं अब क्या कह रहा हूं, और फिर ये बोलते बोलते फिर वो हमको सारी चीजों के बारे में बोलते हैं कि स्थान कैसे होना चाहिए, समय कैसा होना चाहिए, आपकी डाइट मिताहार कैसे होना चाहिए, पथ्य अपथ्य आहार कैसे होना चाहिए, नाड़ी शुद्धि कैसे होनी चाहिए। नाड़ी शुद्धि होते होते फिर उसके बाद में जाके उन्होंने प्राणायाम हमारे सामने रखा, और ये प्राणायाम करते करते हम कब केवली को प्राप्त हो जाते हैं, ये पूरा एक लाइन से उन्होंने एक्सप्लेन किया। और ऐसा एक्सप्लेन करते समय के लिए जब उन्होंने ऋतुचर्या दिनचर्या की बात बताते हुए किस तरफ चेहरा रखकर हमको प्रैक्टिस करना चाहिए, कहां बैठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, ये सारी चीजें हमारे सामने आ जाती हैं दोस्तों। इसलिए प्राणायाम करने के लिए या फिर योग करने के लिए
इन सारी बातों की अहमियत रखना बहुत जरूरी है। कभी कभी मैं देखता हूं, once I was in Delhi for exam. One of my colleague, we both were stationed in the same hotel room. He got up in the morning and he was doing his own sadhana practice. तो उन्होंने मुझे बोला, साबिर भाई आप प्रैक्टिस नहीं करते? नहीं वो करता हूं। तो आपको करना चाहिए। हर एक योग टीचर का एक सिद्धांत होना चाहिए कि भाई उसको रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए। तो मैंने कहा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हमारे ग्रंथों में जो बताया गया है कि समय, काल, जगह ये सब मायने रखती हैं। अब आपको ये पता नहीं कि आप जिस जगह पर बैठे हुए हैं वो कैसी जगह है। आपको ये पता नहीं कि आप किस तरफ फेस कर रहे हैं। आपको ये पता नहीं कि आसपास में शुद्धता कितनी है, कितने लोग, कैसे कैसे लोग आते होंगे और जाते होंगे। तो ये जगह जो यहाँ पर हम जो रह रहे हैं या बैठे हुए हैं या सोए हैं या कोई भी कार्य कर रहे हैं, उस जगह पर बैठ के करने के लिए किस प्रकार के वाइब्स वहां पर एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या आपको ऐसे सिचुएशन में करना चाहिए? तो उन्होंने मुझे एक ही बात बोली, आप बहुत सोचते हैं, इतना सोचने का नहीं, अपना अभ्यास करते रहने का। तो आई सेड यू आर राइट, बट आई डिड नॉट कंटिन्यूड विद द आर्ग्यूमेंट, क्योंकि जब हम इतना नहीं सोचेंगे तो हम कैवल्य की तरफ कैसे जाएंगे? अगर कैवल्य की तरफ आपकी जर्नी है, इतना सोचना जरूरी है। अगर आप उतना नहीं सोचेंगे तो वहीं रह जाएंगे। आपको फिजिकल बेनिफिट्स मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेंटल बेनिफिट्स भी मिलेंगे, इसमें भी कोई डाउट नहीं। बट व्हेन इट कम्स टू द एक्सीलेंस, इट इज वेरी डिफिकल्ट। आप वही श्लोक ले लीजिए भगवत गीता के 47, 48, 49, 50। एक तो पहले आपको बोल दिया कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगो अस्ति अकर्मणि। उसके बाद में योगस्तु कर्माणि। अब जो बताया है निष्काम कर्म करने के लिए हमें क्या मिलेगा, इसको दिमाग में न रखते हुए कर्म करते जाना है, ड्यूटी निभानी है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो अटैचमेंट में आ जाओगे। संगम त्यक्त्वा धनंजय, डिटैच हो जाओ। सिद्ध असिद्ध यो, सक्सेस और फेलियर से बाहर निकलो। समत्वम योग उच्यते, समत्व का भाव रखना बहुत जरूरी है। तो कौन से समय क्या करने से आपका समत्व भाव बना रहता है, ये भी दिमाग में रखना जरूरी है। और फिर हमको आगे वो बोलते हैं कि ये समत्वम के भाव को मेंटेन करते हुए, इसमें कंटिन्यूड रहते हुए तुमको प्रैक्टिस करते जाना चाहिए। हर दुनिया की दुनियादारी की जितनी भी जो तुम्हारे धर्म के अनुसार जो तुम्हारे कर्म है, उनको उसी तरह से करते जाना चाहिए। और जब आपने ये क्लैरिटी ले आई, बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृत ही, bringing that equanimity we have understood. Now in that equanimity, making the body steady, making the chitta stable and steady without being experiencing any kind of dukha or sukha. तस्माद योगाय युज्यस्व, इसी तरह से बने रहना चाहिए। और ये बने रहने को ही हम क्या बोलते हैं, कर्मसु कौशलम। तो हमको वो कर्मसु कौशलम को हमारी ये प्रैक्टिस के अंदर, जो हम हठ योग की साधना करते हैं, उसके अंदर कनेक्ट करना चाहिए कि कहीं हम बेनिफिट्स की तरफ होकर तो नहीं प्रैक्टिस कर रहे। तो वो तो सकाम कर्म हो गया आपका योग में भी। हमको तो निष्काम की बात की गई। आज के डेट में जितने प्रैक्टिशनर्स हैं, मतलब ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि कई हजार योगियों में शिव संहिता में लिखा हुआ है
कई हजार योगियों में एक योगी इस लेवल पर आकर प्रैक्टिस करता है, और ऐसे कई हजार योगियों में एक योगी को मुक्ति मिलती है। अब आप सोचो, अगर 1000 में एक है और ऐसे कई 1000 होंगे, उनमें से किसी एक को मुक्ति मिलती होगी, यानी किस प्रकार की साधना होगी वो, हम तो खाली इमेजिन कर सकते हैं वो लेवल की तरफ। लेकिन उसमें आने के लिए हठ योग ने, घट योग ने हमारे सामने जो सिद्धांत रखे हुए हैं, वो सबको फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो यहां पर घेरंड मुनि ने हमारे सामने जो बात रखी कि भाई ये जो 6 सीजन्स हैं, ये 6 सीजन्स के अंदर वसंत और शरद एक ऐसे सीजन्स हैं कि तब तुम अगर कभी अभ्यास की शुरुआत करके बॉडी को उसके साथ में अडेप्ट कर दो, तो शायद हो सकता है आने वाले सीजन्स आपको अफेक्ट नहीं करेंगे और उसमें आप स्टेबल बने रहेंगे, कंटिन्यूड प्रैक्टिस चलती रहेगी। और एक बार वो स्टेबिलिटी आ गई, फिर तो सीजन दुनियादारी मायने ही नहीं रखती आपके लिए। फिर धूप क्या, छांव क्या, बर्फ क्या, कोई मायने नहीं रखता आपके लिए। फिर आप उसमें एग्जिस्ट करते हैं, और फिर आपको प्रैक्टिकल भी कैसे करते रहना चाहिए। उन्होंने कहा सगर्भ निगर्भ, लेकिन ये सगर्भ निगर्भ करने से पहले नाड़ी शुद्धि, समनु नाड़ी शुद्धि, निर्मणु नाड़ी शुद्धि। निर्मणु नाड़ी शुद्धि के अंदर उन्होंने कहा धौती कर्म। अब वो निर्मणु नाड़ी शुद्धि इज वेरी एसेंशियल टू ब्रिंग अबाउट द बैलेंस इन द 3 दोषास। समनु नाड़ी शुद्धि इज वेरी एसेंशियल टू कनेक्ट दैट बैलेंस स्टेट ऑफ 3 dosha with the state of 3 gunas, जहां पर वो बैलेंसिंग एक्ट आ जाता है। और वो त्रिगुणात्मक अंडरस्टैंडिंग के अंदर when we are about to change our nature itself, that is the time that you are going ahead in yoga. And he says now you practice this kumbhakas and you will find that you are leading yourself to केवली। तो सहित से उन्होंने शुरुआत की, और सहित के अंदर अगर उन्होंने एक पैटर्न बताया ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल का, जिसको उन्होंने अनुलोम विलोम भी कहा है, और उसके साथ साथ दूसरे वैरायटीज भी रख दी आपके सामने, सूर्य वेदन, उज्जयी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, और अल्टीमेटली केवली। जब हम केवली में आ जाते हैं, तो बाय द टाइम practicing those pranayam we reach to kevali, the realization is very clear. There is no attachment, there is no connection, full pratyahar, settled completely. You are flowing only in that one stream of oneness with prana, and obviously kevali is going to come, you are going to achieve it. So once that kevali ka experience hone laga, to aage jaake samadhi ka experience hota hai. Once you are experiencing samadhi, you are going into nirbija. Once you are going into nirbija, you are attaining kaivalya. So this is how we have to understand and clarify. तो 5th चैप्टर का हमने थोड़ा सा रिवीजन भी कर लिया कि हम इसमें कनेक्टेड रहें, और आसन को उतना इंपॉर्टेंस देते हुए प्राणायाम को उस तरह से हम उसका अभ्यास करते रहें। तो वी कैन स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर। हाँ, यस, हाँ। So in many ways, so therefore pranayam is the pivot of the entire True. yogic process. Very true. It is something like, Okay. कि जब हम गाड़ी चलाते हैं ना, तो हम गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट गियर में डालते हैं, यम नियम। जब वो मोमेंटम पकड़ती है, उसको आसन में लाते हैं, सेकंड गियर। जब वो और थोड़ा मोमेंटम पकड़ती है, तो थर्ड में डालते हैं। थर्ड में डालने के बाद में टॉप में आते हैं। एंड देयर इज ए टाइम which is beyond that, 5th or 6th gear maybe, where you don't have to put efforts. You have to only understand that your car is cruising through, और उसको क्या कहा जाता है, क्रूज मोड। नई गाड़ियों के अंदर आया है ना क्रूज मोड, ये भी तो एक कार है जिसको क्रूज मोड में लाके छोड़ देना है। As simple. So what you said, pranayam plays a very vital role there. True. So
So therefore, the way I look at in the context of yogic practice in society today, yes, it is true that I think more than 99% of people take to yoga today in order to gain health benefits. So maybe, you know, we can use that as a kuti, as a attraction, as a as a way to involve them up to the stage of pranayam. In any case, you can't reach the stage of pranayam without being healthy in the body. Right? So, जो भी चीज जैसे आपने कहा ना, ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन आप कुछ भी ले लीजिए, धारणा के लिए कुछ भी ले लीजिए, जो आपको अपील करे वही बोला. So अगर आज because of various environmental conditions, agar aaj health becomes the focus of people, then I think it's good to help them adopt that as a focus point, और उनको वहां धीरे धीरे लाते लाते मेरे ख्याल में अगर हम प्राणायाम तक ले आए तो हमारा काम हो गया एज टीचर्स, राइट. फिर वो अपने आप आगे चले जाएंगे और फिर शायद हमारे आगे कोई ज्यादा सिद्ध पुरुष हैं, वही उनको गाइड कर सकते हैं. एजुकेशन देते रहना चाहिए, एजुकेशन ऑफ द प्रैक्टिसेस एंड द रिजल्ट्स आफ्टर प्राणायाम. आप प्राणायाम तक लाके छोड़ देते हैं, वो बात सही है, लेकिन उनको ये एजुकेट करिए कि इसके आगे ये सारी चीजें हैं जिसको हमको पाना है. अभी कई लोग क्या होता है, देयर आर मेनी मेडिटेशन वर्कशॉप्स, लोग ये चीज को समझते ही नहीं और डायरेक्ट मेडिटेशन में चले जाते हैं. अब जैसे कि हम भी यहाँ पर अभी क्लासरूम में 4 लोग बैठे हुए हैं. आशुतोष सर जो है पूरी प्रैक्टिस करके मेडिटेशन की तरफ पहुंचे हैं और उनका मेडिटेशन कहीं जाकर ये इस तरह के स्टेप बाय स्टेप अप्रोच से अब उनका मेडिटेशन होने लगा है. आप हैं कि आपने कभी ऐसा कुछ प्रैक्टिस किया ही नहीं, ना आसन ना प्राणायाम, ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन जब भी आप बैठ गए आंख बंद कर लिए तो आपका ध्यान लगना शुरू हो गया. और वहां पर जय कुमार है. जय कुमार सेज आई कैनॉट इवन रीच टू द प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम इटसेल्फ. मैं आसन करते रहता हूं तो मेरे शरीर के अंदर से कई ऐसे सेंसेशंस आते हैं जो मुझे ये कहता है कि मुझे अभी यहीं पर स्टेबल होना है. How I will be able to do meditation when sir gives instruction to give me to go through the meditation? I feel my body is aching, my body is giving me sensations of unrest within. तो जिसके बदन में, जिसके बॉडी में, जिसके माइंड में वो अनरेस्ट है, क्या वो इंसान को हम डायरेक्टली मेडिटेशन में बिठा सकते हैं? इनफैक्ट ही विल बी मोर प्रॉब्लमैटिक इफ ही डायरेक्टली गोज टू मेडिटेशन. नहीं तो कुछ लोग बोलते नहीं, नहीं, आप आंखें बंद करो, आप खाली फोकस करो, भले उसकी सांसें क्यों ना हो. वो बोलता है कि नहीं, मुझसे नहीं हो रहा है, मेरा सरदर्द शुरू हो गया. क्यों शुरू हुआ है? क्योंकि उसकी फिजिकल एबिलिटी जो है उस लायक की है ही नहीं. तो व्हेन इट कम्स टू डू सर्टेन प्रैक्टिसेस, whether you qualify for that practice, that also becomes important. तो ये एजुकेशन अगर कभी हमने अपने स्टूडेंट को दे दिया तो they will at least know whether I am qualifying for that. And yes, if they are qualifying, they are qualifying. If they are not, then they have to come to the previous one. फिर आपको कोई स्टूडेंट ऐसा सवाल करेगा, सर उससे मेडिटेशन होता है, मेरे से क्यों नहीं होता? तो इसकी कई बातें हैं. हम इस त्रिगुणात्मक शरीर के अंदर हमारा सत्व रजत तम कौन सा डोमिनेंट है, उसके हिसाब से हम नेचर रखते हैं. तो जो उससे हो रहा है वो तुमसे होगा ही नहीं, या तुमसे जो होता है वो उससे नहीं होगा, because you both are different. So why you compare on this level for this practice? Never do that. कभी कभी टीचर भी ये गलतियां करते हैं. वो बोलते हैं जब वो कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते, तुम तो उससे ज्यादा हट्टे कट्टे हो, ऐसा कहते हैं, तुम तो उससे ज्यादा फ्लेक्सिबल हो. But this is the lacuna in the teacher itself, where he is not connecting the philosophy with the facts. जहां ये क्लैरिटी आ जाती है ना, then we are bringing that samatvam.
But another way to state what I just said could be that up to pranayam, abhyas becomes primary and vairagya becomes secondary. And pranayam and thereafter, vairagya should become primary and abhyas should become secondary. And when abhyas is becoming secondary, I would just like to tell you, abhyas has already become sadhana. देखो यही फर्क है अभ्यास में और साधना में। अभ्यास एफर्टफुल होता है, साधना एफर्टलेसली एफर्टफुल होती है। सही, यही फर्क होता है। अब लोग इसको समझने में रह जाते हैं तो वो कनेक्ट नहीं कर पाते। जी। योग को समझने के लिए ये प्रैक्टिकल के थ्रू इसमें से गुजर के वहां पहुंचना जरूरी है। तो आशुतोष सर को कोई सवाल है? बहुत ही बढ़िया डिस्कशन हुआ है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बोधप्रद हुआ है आज का। जो सवाल सुनील भाई ने उठाए थे और आपने जो उसका विवरण किया था, बहुत ही सुंदर हुआ है। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि आपने सभी चीजों को इकट्ठा लाया है, योग सूत्र, भगवद गीता, घेरन संहिता, सबको वो, क्योंकि वो संयम का जो सवाल सुनील भाई ने उठाया था उससे सभी चीजें इकट्ठा आ गई है। तो बहुत ही सुंदर चर्चा। दैट इज ट्रू, क्योंकि ये बहुत जरूरी हो जाता है कि विदाउट फिलॉसफी प्रैक्टिस, I would say practice does not exist without philosophy. तो जितना हम कहते हैं ना कि योग is a practical science, true, but at the same time that practice itself is philosophy. तो आपकी हरकतें जो हैं, आपके प्रिंसिपल्स होते हैं, ऐसा हम कहते हैं ना, आपके एक्शंस बताते हैं कि आप किस प्रकार के इंसान हैं। तो आपकी योगिक प्रैक्टिस बताती है कि आपके कौन से लेवल पे आप एग्जिस्ट कर रहे हैं। दैट इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो इसलिए ना फिलोसॉफी की मालूमात होना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट दिस 4 टेक्स्ट, भगवद गीता, योग सूत्र, हठ प्रदीपिका, गेरंड संहिता, और इसके अलावा 5वां जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 4 अगर कभी हमने समझ लिए, मोर देन इनफ, एंड बिकम फोकस्ड ऑन दिस 4. If we go ahead with our practice and philosophical understanding, everything comes in. See, Gita itself is the Maha Upanishad. सारे उपनिषदों का सार उसमें है, सारे वेदों का सार उसमें है। And when it comes to Yoga Sutra, it is exclusively talking about the Chitta. And then when it comes to Hatha Pratipika, very gross aspect of physical. तो जब हम फिजिकल, फिलोसॉफिकल और सटल को भी समझ के हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं ना, तो प्रैक्टिस करते समय भी जो है ना, हमारा एटीट्यूड, हमारा अप्रोच इतना चेंज हो जाता है कि जैसे अभी सुनील भाई ने कहा ना कि इनिशियली अभ्यास इज मोर एंड वैराग्य इज सेकेंडरी, बट एज यू गो ऑन एक्सेलिंग, वैराग्य इज फॉरमोस्ट एंड अभ्यास बिकम्स सेकेंडरी। एंड दैट्स वेयर आई सेड कि यू आर इनटू साधना नाउ। ऐसे इसको समझ के हमको I would venture to I would submit just one little modification among the 4 texts. मैं ये कहूंगा अगर 4 ही रखनी हो तो शायद घेरन संहिता, भगवद गीता, योग सूत्र, और चौथी मैं कहूंगा सांख्य कारिका होनी चाहिए। हाँ, रीजन बीइंग, हाँ बोलिए। रीजन बीइंग कि एक्चुअली सांख्य कारिका इज अ टेक्स्ट फॉर वैराग्य। अगर सांख्य को ढंग से समझ ले, है ना। मैं अभी एक बात बोलता हूं, हाँ, योग सांख्य से अलग है ही नहीं। योग सूत्र जो है ना, जो सांख्य ने फिलोसॉफिकली नॉलेज के बेस पे कहा है, योग इज प्रैक्टिकली सांख्य।
वो हमको, आपको याद होगा हमने योग सूत्र में ये कहा था, और सांख्य के अंदर ये लिखा हुआ भी है कि पुरुष के पास आंखें हैं लेकिन पैर नहीं है, लेकिन प्रकृति के पास पैर है लेकिन आंखें नहीं है। ये सांख्य के सूत्रों में आपको मिलेगा, कारिकाओं में। तो जब ये बात आ जाती है तो वन थिंग बिकम्स वेरी क्लियर, इफ सांख्य इज नॉलेज बेस्ड, then yoga is practical sankhya and sankhya is theoretical yoga. अगर theoretical योग समझना है तो सांख्य को समझो, और अगर कभी प्रैक्टिकल सांख्य को समझना है तो योग को समझो। Things becomes clear. तो जब सांख्य कारिका की आप बात कर रहे हैं तो वो तो क्लियरली आपको ये प्रैक्टिकल योग जब आप करते हैं ना, इसके अंदर आ ही जाता है सर। सारे जितने जो आपके, मेरे ख्याल से 32 नहीं, कितने हैं उसमें कारिकाएं हैं, आई थिंक 72, एक्चुअली है 70। सांख्य कारिका में 70 कारिका है, लेकिन उसको 72 बनाया हुआ है टू मेक इट, टू ब्रिंग अबाउट दैट क्लैरिटी। अगर ये कारिकाओं को अगर कभी आपने पढ़कर इसको अच्छी तरह से समझ लिया, और योग सूत्र को पढ़कर अगर कभी आपको उसको समझ लिया, तो एक क्लैरिटी आ जाती है कि अगर ये थियरी है तो ये प्रैक्टिकल है। वो पूरे के पूरे जो 72 कारिका हैं, वो आप योग सूत्र के अंदर एक एक सूत्र में आप समझ सकते हैं। एक एक सूत्र में, मैं एक एक सूत्र की बात कर रहा हूं, बिकॉज प्रैक्टिस बिकम्स प्रोफाउंड ओनली व्हेन यू डू रिफ्लेक्शंस ऑन दोस सूत्रास। नहीं तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए स्टूडेंट्स को पढ़ाना, और एट द पॉइंट ऑफ टाइम गिविंग यू द रेफरेंस कि कौन से चैप्टर में कौन सा और कहां पर क्या कहा गया है, वो रिलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब तक आप उसको उस तरह से समझकर उसको एब्जॉर्ब ना किए हो, देन इट इज नॉट इजी फॉर यू टू टेल। सो दिस इज वेयर व्हाट यू से कि सांख्य कारिका, आई एग्री, but let me tell you, Sankhya Karika and Yoga, they are sister sciences. They are one and the same. So what? बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल they are like two sides of the same coin. अगर देखा जाए दोनों में फर्क ये है कि योग सूत्र presents the same thing from a prakriti centric perspective, whereas Sankhya Karika says the same thing from a purusha centric perspective. Yes. तो ये दोनों जो हम करें तो हाँ, that is true. That is true. तो वो अंडरस्टैंडिंग क्या है, कंप्लीट हो जाती है। वो इंटरनल एक्सटर्नल का जो है ब्रिजिंग बहुत अच्छी हो जाती है when we are able to relate both these together. And और ये हकीकत है कि योग सूत्र पढ़ने से पहले हमको सांख्य कारिका पढ़ना है। हम लास्ट में पढ़ेंगे, ये बात अलग है, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं कि आगे जब कभी ऐसे मौका मिले तो पहले सांख्य कारिका और फिर उसके बाद में योग सूत्र, क्योंकि जब सांख्य कारिका पढ़ के उसको अच्छी तरह से समझ लिया जाए, फिर योग सूत्र को समझना जो है ना